नमस्कार, मैं सबनाज और खबर आसनसोल देख रहे हैं आप। स्पॉन्सर्ड बाय सुप्रीम गारमेंट। सुप्रीम गारमेंट, मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल हॉस्पिटल, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, आसनसोल कार बाजार, ये आसनसोल कार बाजार एंड को स्पॉन्सर्ड बाय फर्नीचर वर्ल्ड। फर्नीचर आइए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। आसनसोल साउथ के एमएलए अग्निमित्र पॉल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तृणमूल कांग्रेस पे साधा निशाना। अग्निमित्र पॉल ने कहा कि स्कोप के तकरीबन 500 क्वार्टर को अवैध तरीके से दखल किया गया है। साथ ही साथ इसको की जमीन पे न्यूटाउन, बनपुर, रहमतनगर, रांगापाड़ा में दुकान मकान निर्माण कर दिए गए हैं। अग्निमित्र पॉल ने विभिन्न ट्रेड यूनियन के पार्टी दफ्तरों पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं टीएमसी नेता अशोक रुद्र ने कहा कि अग्निमित्र पॉल सिर्फ आरोप लगाती है, पहले वो खुद अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें। उनके इर्द गिर्द के लोग ही अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं और इसको के जरिए उनके लिए एक बड़ा बंगलो दिया गया है। সবাইকে নমস্কার জানাই, সবাইকে সুপ্রভাত। আজকে মকর সংক্রান্তির শুভ দিনে আপনাদের সবাইকে মকর সংক্রান্তির শুভেচ্ছা জানাই। আজকে একটি বিশেষ বিষয় আপনাদেরকে ডাকা, আপনাদের মাধ্যমে আসানসোলের মানুষ এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই বিষয়গুলি জানুক যে তৃণমূল সরকার, আমরা বলে আসছি যে তৃণমূল এবং দুর্নীতি হচ্ছে সমার্থক শব্দ। আগামী দিনে ডিকশনারিতে আর দুর্নীতি লেখা থাকবে না, করাপশন লেখা থাকবে না, তার বদলে টিএমসি শব্দটি থাকবে। যে কোনো মানুষ বুঝে যাবে যে সেটার মানেই হচ্ছে টিএমসি মানেই হচ্ছে দুর্নীতি, করাপশন। যা দুর্নীতি পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে প্রতিদিন, নতুন রকমের দুর্নীতি, নতুন রকমের পদ্ধতিতে দুর্নীতি, নতুন নতুন নাম, এবং সেখানে প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রেজেন্ট মন্ত্রী, সব রকমের নাম আসছে। আজকে আমি যে বিষয়ে কথা বলবো সেটা আমার দক্ষিণ আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা নিয়ে, ইসকোর কোয়ার্টার নিয়ে। ইসকোর কোয়ার্টার, আপনারা জানেন যে যারা ইসকোর এমপ্লয়ি তারাই সেই কোয়ার্টার পায়, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ইসকোর 500 এমন কোয়ার্টার, মানে 500 আমি খুব একটা ছোট শব্দ বললাম, খুব কম করে বললাম, 500 কোয়ার্টার টিএমসি নেতা কর্মী তারা ইল্লিগালি দখল করে রেখেছে, এবং দখল করে তারা নিজেরা ইউজ করছে সেটাও নয়, তারা সেটা ভাড়াতে দিয়ে দিয়েছে, এবং বিভিন্ন রকম ইল্লিগাল অ্যাক্টিভিটিসে সেই ভাড়ার টাকা ইউজ হচ্ছে। ভেবে দেখুন, ইসকো হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের, তার কোয়ার্টার পাওয়ার কথা তার এমপ্লয়ীদের। বহু এমন এমপ্লয়ি রয়েছে যারা এখনো কোয়ার্টার পাচ্ছে না, কোয়ার্টার নেই বলে। কিন্তু এই টিএমসির নেতারা, কর্মীরা এই 500-র ওপর কোয়ার্টার ইল্লিগালি দখল করে বসে রয়েছে, সেখানে ভাড়া খাটাচ্ছে, আর ইসকো সেখানে বিনা পয়সায় ইলেকট্রিসিটি, জল সবকিছু সাপ্লাই করছে। এইটা একটা বিষয়। 2 নম্বর বিষয় হচ্ছে তৃণমূল এত বড় বড় কথা বলে, সততার প্রতীকটা এখন আর লেখেন না লজ্জাতে। তবে ওই বলি না, মা মাটি মানুষ, মার জমি দখল হয়ে গেছে, মা বাড়ি পাচ্ছে না, আবাস যোজনার বাড়ি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পাঠাচ্ছেন, সেই বাড়ি মায়েরা পাচ্ছে না, গরিব মায়েরা পাচ্ছে না। তৃণমূলের বড় বড় কর্মী নেতারা তারা বাড়ি পাচ্ছে, যাদের 4তলা 5তলা বাড়ি তারা বাড়ি পাচ্ছে। মাটি দখল করে নিয়েছে টেররিস্ট, গুন্ডা, অ্যাপিজমেন্ট পলিটিক্স চলছে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে, আর মানুষ তো বড় কাঁদছে। সেই মা মাটি মানুষের সরকারের ইউনিয়ন তারা বিভিন্ন কোয়ার্টার দখল করে রেখেছে, এবং কংগ্রেসের ইউনিয়ন রয়েছে আইএনটিইউসি, সে দখল করে রেখেছে প্রায় 1 2 3 4 5টা, আমার কাছে যতটা এসছে আর কি, 5টা বাংলো। এআইটিইউসি 1 2 3 4 5 6
7খানা বাংলো, HMS 1 2 3 4, BMS 3টে আর C2 একটা। এইটা হচ্ছে তাদের মানে দখল করা বাংলো কোয়ার্টার। দুটো এমন বাংলো যেটা আমাদের বার্নপুর টাউন অফিসের ঠিক সামনে প্রিমিয়াম এলাকা, এই ট্রেড ইউনিয়ন INTTUC তারা দখল করে বসে আছে। তারা কিন্তু ইসকোর রেকগনাইজড ইউনিয়নই নয়, কিন্তু তারা বার্নপুর আমাদের ইসকোর যে টাউন অফিস ঠিক তার সামনে দুটো বড় বাংলো দখল করে বসে আছে। এবার আসি জমি। ইসকোর জমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ইসকোর জমি মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের জমি, ইসকোর জমি মানে কেন্দ্র সরকারের জমি। সেই জমি বিক্রি হয় কি করে? रहमतनगरे যান, रहमतनगर नया बस्ती, চাবি মোড়, পাঞ্চিল এবং বিভিন্ন জায়গায় रहमतनगरे ইসকোর জমির ওপর বাড়ি তৈরি হয়ে যাচ্ছে। কার পারমিশনে? কে অধিকারটা দিচ্ছে? কোন সাহসে তারা বাড়ি বানিয়ে নিচ্ছে? এই বিষয়ে আমি ডিআইসি কে মেল করেছি, ইসকোকে মেল করেছি। আগেও বলা হয়েছে, এখনো বলা হয়েছে, কিন্তু এখনো অবধি কোনো রেজাল্ট আমরা পাইনি। নিউ টাউনে যেখানে সিআইএসএফ এর হেডকোয়ার্টার আছে, তাই তো, সিআইএসএফ এর হেডকোয়ার্টারের পাশে একটা বিরাট জমি, 20 বিঘা প্রায় জমি হবে আন্দাজে বলছি, সেটা পাঁচিল দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই জমি পুরোটাই যে ইসকোর সেটা নয়, কিন্তু ওই জমিটার অনেকটা পোর্শন ইসকোর জমি। তাহলে যারা, কোন কোম্পানি বা কারা এইটা পাঁচিল দিয়ে দিল 20 বিঘা জমি, যার মধ্যে ইসকোর অনেকটা জমি রয়েছে, কার পারমিশনে হচ্ছে? कौन इसका परमिशन दे रहा है? किसका अनुमति से ये काम हो रहा है? ये हमारा प्रश्न है। रहमतनगर का इसको का जगह माइनॉरिटी इलाका में पूरा घर बना रहे, किसका परमिशन में हो रहा है? लमायस पार्क, नेहरू पार्क, लमायस पार्क के सामने रिवर्स साइड इलाका में जमीन पर जमी, इसको का जमीन प्लॉटिंग हो रहा है। किसका परमिशन से, किसका अनुमति से? ये तो केंद्र सरकार का जमीन है। तो ये हमारा प्रश्न है और इसके लिए आज हम आपका सामने ये डेटा लेकर आए हैं। উনি কি বলেন কোনো ওনার ঠিক নেই। উনি জবে থেকে নতুন রাজনীতিতে এসেছেন, তো খালি অভিযোগ করেন, গঠনমূলক কাজ নেই। আর যে অফিসগুলো ওনারা বলেছেন, কোনো অফিস 30 বছর 35 বছর 10 বছর করে আছে, এবং এগুলো ইসকো আমাদেরকে সব মৌখিকভাবে পারমিশনও দিয়েছিল, এতদিন ধরে আছে। যদি অবৈধভাবে হতো ইসকো কেন অ্যাকশান নেয়নি? আর দ্বিতীয় কথা, আমরা লিখিতভাবে অনেকবার ইসকোকে বলেছি যে আপনারা যেমন অগ্নিমিত্রা পাল দেবীকে একটা বিরাট বাংলো দিয়েছেন, বাংলোটাকে যেমন সাজিয়ে দিচ্ছেন ইসকোর টাকা খরচ করে, আমাদের সেই ধরনের চাই না। আমাদের মানুষকে পরিষেবার জন্য একটা ছোট কোয়ার্টার বা কিছু দিন, যেখান থেকে আমরা মানুষকে পরিষেবা দিতে পারবো। তো ইসকো সেটা দেয়নি। আর মাননীয় বিধায়িকা বলেছেন ঠিক আছে, কিন্তু উনি আগে খবর নিন যে ওনার দলের শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম করে তার দলের নেতা কোয়ার্টার দখল করে রেখেছেন, তার আশেপাশে যারা ঘোরেন তারা প্রচুর কোয়ার্টার দখল করে রেখেছেন ইসকোর। আগে সেগুলোকে সরাক, এবং ইসকোর যদি কোয়ার্টার দখল হয়ে থাকে, আমরা ইসকো কর্তৃপক্ষকে বহুবার বলেছি যে আপনারা সেগুলো ব্যবস্থা নিন। ইসকো কেন নিচ্ছে না? ইসকো তো কেন্দ্রের একটা সংস্থা, সেল আইএসপি ইসকো। তো উনি ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়িকা, উনি কথা বলুক। আর ব্যক্তিগতভাবে আমার অফিসটা নিয়ে উনি কেন্দ্রীয় যিনি ইস্পাত মন্ত্রী তার কাছে অভিযোগ
করেছিলেন 3-4 মাস আগে লিখিতভাবে, সে তিনি করতেই পারেন। অফিসগুলো নিয়ে তো আমাদের মানুষের পরিষেবা দেওয়া হয় এবং ইসকো সব জানে কোথায় কিছু হলে ইসকো এতদিন কেন ব্যবস্থা নেয়নি। आज आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक के टोटो ड्राइवर्स ने आपस में एक बैठक की। दरअसल उनका कहना है कि आज से 3 दिन पहले पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें एक मीटिंग के लिए जोगी स्थान बुलाया था, जहां कहा गया कि जीटी रोड पर 20 जनवरी से आसनसोल आश्रम मोड़ से गिरजा मोड़ तक टोटो के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। और इसी को लेकर शनिवार यानी कि आज आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक के टोटो चालकों ने आपस में एक बैठक की, क्योंकि उस दिन मीटिंग में सभी ड्राइवर्स नहीं जा पाए थे। और इस मौके पर टोटो चालकों ने आपस में बात की कि उन्हें जीटी रोड पार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। और अपनी इसी मांगों को लेकर वो लोग बहुत जल्द डीएम, मेयर और मंत्री से मिलेंगे और अपनी मांग को उनके सामने रखेंगे। आज किस लिए आप लोग आए हैं, क्यों सब एक जगह जमायत में हैं? हम लोग इसलिए आए हैं कि 3 दिन पहले पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर जोगी स्थान के पास हम लोगों को बुलाया था और एक मीटिंग हुआ, तो बहुत कम और टोटो ड्राइवर पहुंचा, चूँकि सब आदमी को मालूम नहीं था। तो वहां जाने के बाद ऑफिसर लोग हम लोगों को बताया कि 20 तारीख के बाद से ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप लोग जीटी रोड पर टोटो नहीं चलाएंगे। मैंने उस जगह तो मेंशन किया था आश्रम मोड़ से गिरजा मोड़ तक, तो जिसके कारण से हम लोग को परेशानी बढ़ गई है, चूँकि हम लोग टोटो चूँकि तो गली मोहल्ला में चल रहा है और पैसेंजर को उठा के हमको जीटी रोड तक जाना ही है। अब किसी को बस स्टैंड छोड़ना है, रेल पार्क अगर गाड़ी है तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो रोड क्रॉसिंग चाहिए। अब मोइसला का गाड़ी है, बरनपुर का गाड़ी है, आलमनगर का है, रहमत नगर का है, तो उसको तो स्टेशन आना पड़ेगा। तो रोड क्रॉसिंग का मामला आ गया। जब रोड क्रॉसिंग जब नहीं होगा तो फिर हम लोग का तो मैंने अगर हम रेल पार से कोई पैसेंजर हमको कहता है कि आपको हॉस्पिटल चलना है और हम बोलेंगे आपको बस स्टैंड में उतार देंगे, तो मेरे गाड़ी में नहीं बैठेगा। और अचानक अगर नहीं बोलेंगे और लेके जाएंगे कि नहीं हम लोग ऐसा कानून, तो हम लोग से झमेला होगा। तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने सब पूरा नॉर्थ ब्लॉक का जितना भी हम लोग का नॉर्थ का एरिया में है टोटो ड्राइवर, हम लोग अपना बात किए कि हम लोग क्या करना है। तो हम लोग बोले कि नहीं चलो इसके ऊपर, चूँकि प्रशासन जो बोला है वो अपने मर्जी से तो नहीं बोले, उसके ऊपर भी कोई ऊपर है कानून है, और कानून उनको भी मनवाना है और हम लोग को भी मानना है। हम लोग भी उनके साथ में हैं। मेयर साहब के जैसे हम लोग बोले कि मेयर साहब भी बैठ के फैसला किए हैं, डीएम साहब हैं, मंत्री साहब है, जो भी है, लेकिन हम लोग सबको मानेंगे। लेकिन हम लोग की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं पर है, उनको हम लोग के बारे में भी सोचना पड़ेगा। कम से कम रोड क्रॉसिंग जहाँ भी इमरजेंसी होता है, हालात के हिसाब से हम लोग को भी परमिशन दिया जाए कि हाँ ठीक है अपना घर परिवार चले। चूँकि माँ माटी मानुष का सरकार है, ममता बनर्जी है, तो उन्होंने वादा भी किया है और ऐसा भी बेरोजगार को रोजगार देने का। तो हम लोग से ऐसा हम लोग को मानते हैं, हम लोग का रोजगार नहीं छीना जाएगा, जिसके कारण से हम लोगों ने बोला नहीं, अब हम लोग नॉर्थ ब्लॉक में जाकर लीडर से लोग बातचीत किए, अपना पूरा प्रॉब्लम वहाँ तक रखे। उन लोगों को भी मालूम था। ये अलग बात है कि टोटो वाला आज तक कभी जुड़ा नहीं था, टीएमसी सब है, लेकिन कभी कोई जुड़ा नहीं, इस मामले को लेकर सीरियस कभी नहीं था। जब हालात बिगड़ना शुरू हुआ, जब अपने बाल बच्चे का रोजी रोजगार पेट का मामला आया, पढ़ाई लिखाई का, अगर आज हम लोग इनकम अगर बंद हो तो अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से? आज के दिन में मेडिसिन बहुत महंगा हो गया है, एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है, तो हम तो इसी से अपना परिवार चला रहे हैं ना। एक तो डॉक्टर का फीस 500 रुपया, 2000 रुपये का दवा है, एक एक्सरे का, तो हम तो इसी से परिवार चला रहे हैं। तो हम इसलिए अपना प्रॉब्लम, अपना दुख दर्द हम लोग वहाँ नॉर्थ ब्लॉक में रखे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम मंत्री साहब से बात करेंगे, जैसा होगा फिर तुम लोग को हम बताएंगे। हाँ, हम लोग तुम लोग के साथ हैं, जो तुम लोग का जायज़ मांग है हम लोग उसमें लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई तो नहीं है, तुम लोग के लिए हम कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा, बेरोजगार किसी को नहीं होने देंगे, ये बोल करके मीटिंग को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग को मीटिंग के लिए जरूरत पड़ेगा तो फिर हम लोग कॉन्टेक्ट करेंगे। वहाँ किन से बात हुई है नॉर्थ ब्लॉक में? उत्पल सेना थे और हेमंतो गोस्वामी थे और भी बहुत सारे वहाँ पे देखते, ये दोनों बड़े लीडर थे हम लोग का नॉर्थ ब्लॉक का। आपका नाम? मोहम्मद आलमगीर। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064।
महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। अगर आपको तलाश है ऐसे सेकंड हैंड कार की जो हो आपके बजट में और दे आपको हाई परफॉर्मेंस, तो आसनसोल कार बाजार है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा, टोयोटा, फोर्ड जैसी कंपनियों की सेकंड हैंड कारें हमारे यहाँ उपलब्ध है, वो भी फाइनेंस फैसिलिटी के साथ। हमारा पता है NH2 बाईपास, शीतला मोड़, ADDA, आसनसोल। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फ़ोन से बोर, तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। इसके अलावा स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेरांगा, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, TP मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি দু চার কথা বলছি। আজকে ইউথ জোড়ো বুথ জোড়ো যুব কংগ্রেস থেকে একটা প্রোগ্রাম কেন করছি? আমাদের এই প্রোগ্রাম করার আমি আমাদের জেলার सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मकर संक्रांति का आज पर्व है। गठबंधन याद रखें, ये गठबंधन की जो पीछे आप पोस्टर देख रहे हैं, ये भारत जोड़ने के लिए। तो मैं शुरू करता हूं। कुछ लोग मीडिया पर ऐसी बात कर रहे हैं कि मुझे ताजुब हो रहा कि हमारा हिंदुस्तान हो एलियन आ गया है। वो मुझे आज सुबह में एक दोस्त, मेरे दोस्त था, बोलने क्या आया है, उसको किस यूनिवर्सिटी ने कांटेक्ट दे दिया, बोला शबाब भाई आपको पता है बहुत जल्दी भारत पढ़ गया हो, आपको किसने ये सब पढ़ाया है? बोला देखिए ना मोदी जी ये सब चाल चल दी है ना कि देखिएगा डॉलर तो मतलब आप जिसका सोच रहे थे आपको सुने होंगे
कि राहुल गांधी को क्या जरूरत भारत जोड़ने की। अरे भारत कहाँ टूटा हुआ है भारत जोड़ने की। हमें इस बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाना है। हमें इस लोग को, जितने भी हमारे युवा है, भावता बेकार কোনো কথা শুনছে কেন্দ্র সরকার, আজকে বেকারদের কোনো কথা শুনছে না কেন্দ্র থেকে শুরু করে রাজ্য, তার বিরুদ্ধে যুবকদের আমরা আমি আর আমার একান্ত অনুরোধ, কারণ যেহেতু আমিও একজন যুবক, আমিও কিন্তু অনলাইনে পড়াশোনা করেছি, আমি একদম বুক ঠুকে বলতে পারি আমি বিভক্ত করেছে করোনা মহামারীতে। আমি বুক ঠুকে বলছি আমি অনলাইনে পাস করেছি, আর কটা দিনই বাকি আছে। তো আমার সঙ্গে আরো যেরকম কোটি কোটি ছাত্রছাত্রী কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবে, তারা চাকরিটা কোথায় করে, আর জাতীয় কংগ্রেস যে কথা বলে সেই কথা রাখে। হয়ে গেছে, আমরা বলেছি তো আমরা 300 ইউনিট কারেন্ট ফ্রি দেবো, কাল কিন্তু ওটা চালু হয়ে গেছে। একই সঙ্গে রাজস্থানে হয়েছে, ছত্তিশগড়ে হয়েছে। তাই প্রত্যেক যুব সমাজ যারা আমার ভাই বোন, আমার বন্ধু, তাদেরকে আমি একটাই কথা বলবো যে ভাই অন্যদিকে তো অনেক গেলে, কংগ্রেসে সরাসরি আসতে হবে না, মানসিক সমর্থনটা দাও। তোমরা যথেষ্ট শিক্ষিত, তা তোমরা কিসে বিশ্বাসী, খেলা মেলায় না কর্মসংস্থানে? এই কয়েকটা কথা বলে সকলকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আর সবাইকে একটা কথা আবার মনে করাচ্ছি, কংগ্রেস কাজে বিশ্বাস করে, কংগ্রেস মেলায় বিশ্বাস করে না, কংগ্রেস খেলায় বিশ্বাস করে না। তো যদি মনে করেন যে কংগ্রেসের সাথে থাকবেন, রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রাটাকে দেখুন। আমরা ধর্মতেও বিশ্বাস করি না, সবাই মানুষ, গায়ের রক্তটা কিন্তু সবারই লাল। এই কটা কথা বলে সকলকে জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন এবং আসছে দিনে যে কালকে আছে মকর সংক্রান্তি, তার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस मीडिया के द्वारा ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई, ये आपके कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज चल रही है। आज इस ठंड में, गर्मी से स्टार्ट होते हुए ठंड में सभी को लेकर के पूरे भारत जोड़ने का जो कार्यक्रम चल रहा है हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये यूथ हो चाहे सीनियर सिटीजन हो, सभी को लेकर के हमारा एक ये विकल्प चल रहा है। क्योंकि आज के दौर में जो भारत की स्थिति है, जो हमारे केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार है, इन्होंने जब केंद्र में सत्ता में आते समय पहले अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या लिखा था, ये सभी कोई जानता है कि हम 15 लाख रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष, सभी के खाते में 15 लाख रुपया करके आएंगे, काले धन को वापस लाएंगे। तो ये सब पूरी तरह से विफल हो चुकी है भारत में आज। और भारत में जो महंगाई की दर है, आप देखिए, जब यूपी की सरकार हमारी थी केंद्र में, पेट्रोल उस टाइम 65 रुपये लीटर, 70 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता था। उस टाइम इस दर को लेकर के हमारे जो केंद्रीय में मंत्री है स्मृति ईरानी जी, उन्होंने चूड़ी बेच करके अपना विक्षोभ जाहिर किया था। तो मैं आज ये पूछना चाहूँगा आप मीडिया के द्वारा कि आज जब पेट्रोल 105 रुपये लीटर है, डीजल 100 रुपये लीटर है, रसोई गैस जो 700 रुपये एक मिलता था आज 1200 रुपये का, सब्सिडी खत्म हो चुका है, ये सब कहाँ जा रहा है? ये आप पूरे भारत को बेच करके रेल को बेच रहे हैं, सेल को बेच रहे हैं, कोयला खदान को बेच रहे हैं। ये आप बेच करके सिर्फ अंबानी और अडानी ग्रुप के एक मुकाम तक ले जाना चाह रहे हैं। तो ये आज की जनता जाग चुकी है। और हमारे जो ये युद्ध जोड़ो बूथ जोड़ो का कार्यक्रम है, ये राहुल गांधी के निर्देश पे किया जा रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि हमारे जितने बेरोजगार युवक हैं आज हमसे जुड़े, क्योंकि बिना संघर्ष किए आज अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिस अभी भारत की स्थिति है, आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग युद्ध को ज्यादातर जोड़ने का कार्य कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग उग्र आंदोलन के लिए प्रेरित हो। काला धन आने पर पूरे देश का विकास होगा। क्या लगता है कि काला धन लाने के बाद देश का हित हुआ, नेताओं का और व्यवसायियों का हित हुआ? काला धन लाने का जो बात हुआ था, काला धन तो वापस आया नहीं अभी, सबसे पहली बात है। उन्होंने कहा था कि अगर काला धन वापस आएगा बहुत सारे नेता मंत्री जेल में जाएंगे। तो आज तक तो हमारे ऊपर जितना लांछन लगा, किसी तरह ईडी, जिस तरह ईडी हमारे नेता माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर एलिगेशन लगाया गया था, वो पूरी तरह से नकारात्मक साबित हुआ। उनको कोर्ट से भी बिल मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं एक मोदी सरकार की विफल योजना है। और आने वाले दिनों में अब जो जनता जाग रही है, ये 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में इनको करारा जवाब मिलेगा। अब ये काला धन का जो प्रोपेगेंडा चलाए थे, वो काला धन के नाम पे इतना सारा मोनेटाइज हुआ, डिमोनेटाइज, जी, उसमें कितना लाभ हुआ? देखिए, इसमें कुछ लाभ नहीं हुआ। जब डिमोनेटाइजेशन हो रहा था भारत में, जब नोटबंदी हुआ था, बहुत सारे गरीब लोग मारे गए, इसमें बहुत सारे गरीब लोग मारे गए। और आज के दौर में आप भी देखिएगा 2000 के नोट मैक्सिमम यहाँ से लापता हो चुके हैं बाजार। तो डिमोनेटाइजेशन कुछ भी लाभ नहीं हुआ है युवाओं को या आम नागरिक को।
और उल्टा उनके ऊपर महंगाई का थोप थोपा जा रहा है। ये सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए ये सब कार्यक्रम किया जा रहा है। मेरा नाम प्रवीण कुमार मंडल, मैं युवा कांग्रेस का पश्चिम बंगाल महासचिव। আজকে কি নিয়ে আপনাদের এই আমাদের মেইন ইস্যু হচ্ছে আজকে গোটা দেশ তথা আমাদের রাজ্যতে যা অবস্থা হয়েছে, আপনার দেখুন আনএমপ্লয়মেন্ট চরম সীমা, 45 বছরের সব থেকে বেকারত্ব বেশি আজকে আমাদের ইন্ডিয়ার এই অবস্থা হয়েছে। আজকে যুব সমাজকে বঞ্চিত করা হচ্ছে আমাদের বাংলাতে, কোনো জায়গায় পার্মানেন্ট চাকরি নাই। আজকে 600 দিনের উপর হয়ে গেল, যারা চাকরি প্রাপ্য চাকরি যারা পাওয়ার কথা তারা আজকে রাস্তায় বসে আছে, আর তারা চাকরির জন্য চেয়ে যাচ্ছে যে আমাদের চাকরিটা দেওয়া হোক, নিয়োগ করা হোক। ব্যাকডোর দিয়ে কিছু লোক যারা পয়সা দিয়ে চাকরিটা নিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে আজকে লড়াই করছেন আমাদের হাইকোর্টে জাজেরা, আমাদের উকিলরা। আজকে এর বিরুদ্ধে আমাদের আজকে লড়াই। আমরা আজকে ইউথদের এই জিনিসগুলো বোঝাতে চাইছি, প্রত্যেক বুথের ইউথকে এই জিনিসগুলো বোঝাতে চাইছি যে 500 টাকায় নিজেদের বিক্রি করবেন না, নিজেদের যেটা হক সেটা আপনারা চেয়ে নিন। আর ভারত জোড়ো যাত্রা যেভাবে রাহুল গান্ধী চালাচ্ছে, এক একজনকে এক একজনের সাথে জুড়ছে, হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই সবাইকে নিয়ে সাথে চলছে, যেটা আমাদের ভারতবর্ষ সেই ভারতবর্ষকে আমরা আবার পেতে চাইছি, সেইটাই আমরা বোঝাবার জন্য আজকে ইউথ জোড়ো প্রোগ্রাম করেছি। বক্তব্য রয়েছে বিজেপি তো বলবেই দাদা, আজকে যেইভাবে ভারত জোড়োর অবস্থা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এত ভিড়, যদি ক্ষমতা থাকে নরেন্দ্র মোদী 1 কিলোমিটার প্রত্যেকে বেশি হেঁটে রাখা, আজকে সেই ক্ষমতাটা আমাদের হবে না। আজকে প্রত্যেকটা ন্যাশনাল মিডিয়াকে আদানি আম্বানির চামচা বানাতে হয়েছে নরেন্দ্র মোদীকে এই প্রোপাগ্যান্ডাটা চালাবার জন্য। 2024-এ কংগ্রেস সরকার বানাচ্ছে, এটা প্রত্যেকটা নর্মাল মানুষের মনে চলে এসছে, মিডিয়ার কথায় আর বিক্রি হবে না। পাঁচটা কাজ গুণে দিতে বলে গুণাতে পারবেন না সেই মানুষ। এই মানুষগুলো হচ্ছে সেই মানুষ যে মানুষগুলো এই কথাটা বিশ্বাস করেছেন যে নরেন্দ্র মোদী চা বিক্রি করতেন, যদিও তিনি তা কেউ জানে না, কেউ দেখেনি নরেন্দ্র মোদীকে চা বিক্রি করতেন, কিন্তু আজকে তাদের চোখের সামনে সেই স্টেশন বিক্রি হচ্ছে, পিএসসি গুলো বিক্রি হচ্ছে, তারা দেখতে পাচ্ছে না। এগুলো হচ্ছে ওই ধরনের মানুষগুলো, যারা একটু শিক্ষিত, যারা একটু বুদ্ধি রাখে, তারা এই জিনিসটা বুঝে যাবে। বিজেপির লোকরা তো বারবার বলছে যদি নরেন্দ্র মোদী না থাকে সনাতন ধর্মের লোক এখানে বাঁচতে পারবে না ভারতবর্ষে। দাদা আমরা 1600 বছর ধরে আমরা দাসত্ব স্বীকার করেছি। আমাদের আগে মুঘলরা রাজ করেছে, তখন হিন্দু খাতরেতে ছিল না, সনাতন ধর্ম খাতরেতে ছিল না। তারপর ব্রিটিশরা 200 বছর রাজ করেছে, তখন সনাতন ধর্ম ছিল না, কোনো ব্যাঘাতে কোনো অসুবিধাতে ছিল না। তারপর আজকে 70 বছর কংগ্রেস রাজ করেছে, বিজেপি রাজ করেছে, তখনও হিন্দু খাতরেতে ছিল না। আজকে অবস্থাটা হচ্ছে যে পিএম হিন্দু, সিএম প্রত্যেকটা রাজ্যের হিন্দু, তারপর আপনার প্রত্যেকটা হাই প্রোফাইল জায়গায় সব জায়গায় হিন্দু বসে আছে, কিন্তু হিন্দু খাতরে মে এটা একটা প্রোপাগ্যান্ডা। এটা মানুষ খুব পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছে, আর আগামী দিনে মানুষ ইভিএম এর মাধ্যমে উত্তর দেবে। আপনার নাম? আমার নাম গৌরব রয়, আমি আসানসোল উত্তর অ্যাসেম্বলির ইউথ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। ধন্যবাদ। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके, कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।